students, myself Rubina Chaudhary, and today I am going to start another new chapter of class 10. Student, today I am going to talk about animal classification. This is a chapter which is there in class 10. So students, we have already seen about classification of living organism in our earlier classes. Now on class 10 we are going to talk about animal classification. So beta, firstly we need to understand why is it necessary to classify animals. When you look around yourself, there are n number of plants and animals. So when we look, plants are small as well as they are too large. When you look at a banyan tree, it is a very huge plant, whereas we can see small grasses as well. Similarly students, when I look around myself, there are small unicellular organisms such as amoeba and protista, whereas I can see a giant whale as well in my surrounding. So what I can see here, there are huge number of animals and they are of different size and their characteristics. Now student, what happens if we look around ourselves? There are huge number of plants and animals. So what if we wanted to study about themselves? It will become quite difficult because at present approximately there are 700 million species of animal present on earth. So student, there are 7 million species of animal present on earth. Now as a scientist or as a biologist or as a normal human being, if you want to study the 700 million species alone, is it going to be possible for us to study? I guess student, it is almost impossible, and I hope you also think one of the same. It is quite difficult to study each and every individual animal. Okay, so I'll give you an example why animal classification, or what is the need of an animal classification. When you go to any library, there are a huge collection of book. So what we can see there, the librarian has arranged the book in a particular order. If I talk about your college library or your school library, you will see there is a separate section of physics, there is a separate section of biology, there is a separate section of chemistry, there is a separate section of science. Now when you go to a librarian, and for now if you are asking for biology, what librarian will do student, she will directly move to the biology, where from that shelf she will take out the book whatever is needed to you. So what does that librarian has did, she had put it up the same kind of or same subject book in a single shelf, and it became easier for her to remove that animal or to remove that book. Now this is the same arrangement which you can see in any supermarket store or any normal store, and as well as when you go to the medicals. Students, when you go to the medical, what you see, there are various medicines and various types of medicines. So what does that medical person does is, he arrange the medicines in the order of alphabetical order, or it can be basis on anything. So that medicines, that medical person arrange the medicines in the order. So when we go and we give him a prescription, so he move to the particular word, and it become easier for him to take medicine from there and to give us, and it will take a less time. Whereas if all the medicines were kept randomly, is it possible for him to go easily and to get medicine from there and to give it to you in a very short period of time? No beta, it won't be that easy. Similarly student, when I talk about animal classification, why there is a need of an animal classification, we are going to understand that, and then we will be talking about animal classification, what is a flow chart, what is a history of animal classification. When I look around myself, bacha, there are various types of animals. We itself are animals. Okay students,
and various types of plant. So now what happens if I want to study all of them? It is somehow impossible, right students? So what scientists did बच्चा, उन्होंने एक जैसे एनिमल्स को एक ग्रुप में डाल दिया. What they did, similar kind of animals with similar characteristic they placed in a single group. तो जब आप इस ग्रुप के एक एनिमल की स्टडी कर लेते हो, दैट मीन्स आपने पूरे ग्रुप के एनिमल्स की स्टडी कर ली. और इसी से हमारे लिए उन्होंने क्या कर दिया, एनिमल क्लासिफिकेशन को सिंपल कर दिया. अब क्लासिफिकेशन करने का क्राइटेरिया क्या था, साइंटिस्ट ने किस बिहाफ पे क्लासिफिकेशन किया, दैट ऑल वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. Firstly, you need to understand there are huge number of animals and it is impossible for us to study all of them individually. हम अकेले उनको नहीं पढ़ सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे. So what scientists did, what they did is they made up a separate branches. They made up a separate group. Similar kind of animals were placed in a similar group. So that became, if you study one animal or two animal from that group, then you are aware of all the characteristics from the group. Student, in your school as well, you have division. For an example, or your teacher give you some sort of project. So what she does, she make a small group. Okay, group A, group B, group C, group D. Okay, so if I say कि मेरे group A में all the students are clever, तो अगर आपको एक बच्चे के नॉलेज के बारे में पता चल जाए तो समहाउ आपको पता है कि सारे उसी लेवल के होंगे, उसी कैलिबर के होंगे. अगर हम क्लासिफिकेशन कभी कभी अलग अलग बेसिस पे कर सकते हैं बेटा, कभी हम हाइट के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, कभी हम परसेंटेजेस के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन होते रहता है और ग्रुप्स भी बनते हैं. आपके स्कूल्स में भी डिवीजन बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम पर्टिकुलर क्राइटेरिया. In a similar manner, animals were also classified, or classification of animal was done to make the study simpler to us. हमारे लिए easy हो जाए animals को study करना, और उसी के लिए हमने animal classification किया है. Students, classification आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो, तो हम लोग सबसे पहले एक फ्लो चार्ट को रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम एनिमल क्लासिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे. तो बेटा अभी मेरे पास ये जो फ्लो चार्ट है, इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. Students, when I am talking about living organisms, I am going to see कि what kind of living organisms are present around us, और ये आप अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हो. बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है एज प्रोकारियोट्स और दे आर क्लासिफाइड एज यूकारियोट्स. बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं एज प्रोकारियोट्स एंड एज वेल एज यूकारियोट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हम वो ये देखेंगे कि वो प्रोकारियोट है कि वो यूकारियोट है. फिर बेटा अगर हम अपने प्रोकारियोट के बारे में बात करें तो हमारा जो प्रोकारियोट होता है, इट इज़ अ वेरी प्री डेवलप्ड सेल के एनिमल्स होते हैं, और इसके अंदर हमारे पास एक किंगडम आता है और उस किंगडम को हम बोलते हैं किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा इज़ अंडर द प्रोकारियोट्स. तो हमारे पास जो किंगडम आएगा वो कौन सा किंगडम होगा, किंगडम मोनेरा होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यूकारियोट्स के बारे में. बेटा यूकारियोट्स जो है ये फर्दर क्लासिफाई होता है एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो बच्चा जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो देयर इज़ अ वन किंगडम विच कम्स अंडर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज़ नोन एज अ किंगडम मोनेरा. तो यहाँ सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास किंगडम प्रोटिस्टा. तो अब जब हमने अपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया तो हमारे पास बेटा जो किंगडम आ रहा है उसे हम किंगडम प्रोटिस्टा बोलेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन आई टॉक अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, they are classified such as
विथ सेल वॉल, वो एनिमल्स जिनके पास सेल वॉल होगा। तो बेटा यूजुअली हम देखते हैं कि सेल वॉल जो है बच्चा वो प्लांट्स के पास होता है। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट टू प्लांट्स। हम जो एनिमल्स होते हैं उनके पास प्लांट्स प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। और दूसरा होता है बेटा विदाउट सेल वॉल। हमारे पास दो तरह के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक को हम सेल वॉल बोलते हैं और एक के पास जिसके पास सेल वॉल होता है दैट इज़ विथ सेल वॉल एंड अनदर विदाउट सेल वॉल। फिर स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर बात करें जो विथ सेल वॉल है वहाँ पे दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉप्स, वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एंड स्टूडेंट ऑटोट्रॉप्स कौन है, तो वी ऑल नो ऑल plants are autotrophs, they prepare their own food in the presence of sunlight। तो बेटा हमने जब ऑटोट्रॉप की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स ऑटोट्रॉप के अंदर एक ही किंगडम आएगा एंड दैट इज नोन एज अ किंगडम प्लांटे। मूविंग अहेड स्टूडेंट, व्हेन आई टॉक अबाउट विथ सेल वॉल तो दो तरह के होते हैं स्पीशीज। एक होता है तुम्हारा प्लांट और जो एक है तुम्हारा ऑटोट्रॉप है, तो दूसरा है बेटा जिसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। Second one is heterotrophs. We have autotrophs student and along with that we are going to see heterotrophs. Students heterotrophs के अंदर आता है fungi. So fungi have cell wall but they cannot prepare their own food. So बेटा ये तुम्हारे heterotrophs के अंदर आ गए kingdom fungi. और लास्ट में अगर हम बात करें विदाउट सेल वॉल तो विदाउट सेल वॉल के अंदर जो आएगा वो है किंगडम एनिमेलिया एंड वी ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अ किंगडम एनिमेलिया। आगे जाके स्टूडेंट्स ये तो हमने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। लेट अस क्विकली रिवाइज। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्लासीफाई किया जाता है एज प्रोकारियोट्स या फिर यूकारियोट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोकारियोट में एक किंगडम होता है जिसे किंगडम मोनेरा बोलते हैं। यूकारियोट्स के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब यूकारियोट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा आएगा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि इनके पास सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है, विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। स्टूडेंट्स जिनके पास सेल वॉल है वो ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स में क्लासीफाई होंगे एज किंगडम प्लांटे और किंगडम फंजाई। Kingdom Plantae prepare their own food in the presence of sunlight, whereas Kingdom Fungi cannot prepare their own food in the presence of sunlight. और without cell wall के अंदर students सारे all animal comes and we call it as a Kingdom Animalia. I hope student this point is clear to you. Now beta moving ahead we are going to talk about the history of animal classification. अब हम इसके आगे की भी बात करेंगे but before that we will talk about कि ये idea of animal classification आया कहाँ से, from where does this idea of classification came. So we are going to talk about history of animal classification. Okay students, before that please take screenshot. I hope student you are done. So now we are going to talk about history of animal classification. Okay students, now let us see what is history of classification. तो बेटा सबने ये तो पता चल गया कि एनिमल्स को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना या एनिमल्स को अकेले अकेले पढ़ना इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो टाइम टू टाइम क्या हुआ, साइंटिस्ट रियलाइज कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू स्टडी एनिमल्स एट इंडिविजुअल लेवल। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, टाइम टू टाइम मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि हम क्या कर सके एनिमल्स को क्लासीफाई करें। टाइम टू टाइम साइंटिस्ट tried to classify animals. अब बेटा अगर हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले
एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में जिसने बात करी थी, ही वॉज नोन एज अ ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। Greek philosopher Aristotle was the first person to talk about animal classification. So he was first to classify animals. ये पहले ऐसे इंसान थे which realized there is a need to classify animals. So he was first to classify animals. Okay students, तो एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था, दैट classification was based on size. Classification was based on size, हैबिट, एनिमल का साइज कैसा है, उनका हैबिट कैसा है एंड उनका हैबिटाट कैसा है, मतलब वो कहाँ पे रहते हैं। तो जो एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया, हिज क्लासिफिकेशन वाज बेसिकली एन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ऊपर से एनिमल्स को देखा और उनको क्लासिफाई कर दिया। तो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था बेटा, उस क्लासिफिकेशन को बोल दिया गया आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब जब हम लोग एरिस्टोटल के आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो इट वाज आल्सो फॉलोड बाय थियोफेरास्टस। फिलनी ने भी एरिस्टोटल के आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया था, एक्सेप्ट किया था स्टूडेंट। जॉन रे ने भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को एग्री किया था एंड कार्ल लिनस ने भी इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया था। ओके स्टूडेंट्स, देखो बेटा, साइंटिस्ट ट्राइड टू क्लासिफाई एनिमल्स। सो इनके रेस में जो सबसे पहले एनिमल क्लासिफिकेशन देने वाले थे, ही वॉज ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटाट्स। एनिमल्स दिखने में कैसे हैं, वो क्या खाते हैं और वो कहाँ पे रहते हैं, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे एरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया। वेयर स्टूडेंट्स, ये मेथड को बाद में लेटर ऑन बोल दिया गया कि एरिस्टोटल ने जो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, बिकॉज सब कुछ ऊपर से देख के एरिस्टोटल ने क्लासिफाई कर दिया था। बट मैनी अदर साइंटिस्ट सच एज थियोफेरास्टस, फिलनी, जॉन रे एंड कार्ल लिनस also supported Aristotle. Later on student, natural system of animal classification was given. इसके बाद बेटा जो है natural system of animal classification came into existence. तो ये जो natural system of animal classification था, let us see वो किसके basis पे था। Later on natural classification of animal came and natural classification of animal was based on बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब वो सेल से बने हैं, वो टिश्यूज से बने हैं, उनके बॉडी में ऑर्गन्स है या क्या है, तो दैट वाज बेस्ड ऑन द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर इनके बॉडी में व्हाट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, सो देयर वाज आल्सो कि हम देखेंगे कि किस तरह के सेल्स बॉडी में प्रेजेंट है। देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम्स और so many characters were now taken into consideration। तो अगर हम देखें जो आर्टिफिशियल मेथड था, वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को, मतलब जो ऊपर से कैरेक्टर दिख रहे थे, अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासीफाई हो रहा था। लेकिन जो नेचुरल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल था बेटा, वहाँ पे हम लोगों ने इंटरनल ऑर्गन्स को देखना स्टार्ट किया और हमने उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। बेटा एनिमल क्लासिफिकेशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बेसिस पे भी एनिमल को क्लासिफाई किया गया है। इवोल्यूशन के बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाई करने का भी काम हुआ।
were also classified on the basis of इवोल्यूशन के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया गया है। तो बेटा इवोल्यूशन के बेसिस पे जो एनिमल को क्लासीफाई करने वाले साइंटिस्ट थे, दे एज नोन एज टोबैस्की एंड मियर। ये लोगों ने एनिमल को क्लासीफाई किया बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ अ इवोल्यूशन। एनिमल का इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसके बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ। लेटर ऑन स्टूडेंट कार्ल वूस ऑल्सो गेव, कार्ल वूस ने भी क्या किया बेटा, एनिमल क्लासिफिकेशन दिया। तो एनिमल क्लासिफिकेशन वाज आल्सो गिवन बाय कार्ल वूस। कार्ल वूस हैज़ आल्सो गिवन अ एनिमल क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी ये हमारे पास पूरा हिस्ट्री है एनिमल क्लासिफिकेशन का। सबसे पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं बेटा। तो जब हमें पता है कि ढेर सारे स्पीशीज़ अर्थ पे प्रेजेंट है, मिलियन ऑफ स्पीशीज़, 7 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट है अर्थ पे एनिमल्स के। तो इंडिविजुअल लेवल पे उनको पढ़ना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। सो साइंटिस्ट रियलाइज कि हम एनिमल्स को क्या करते हैं, ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए। द फर्स्ट वन हु वॉज देयर टू क्लासीफाई एनिमल वॉज ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने क्या किया, एनिमल को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल का साइज कैसा है, एनिमल की आदतें कैसी है और वो कहाँ पे रहता है, क्या खाता है या क्या पीता है। तो उन्होंने सिर्फ एनिमल के ऊपर के अपीयरेंस के बेसिस पे, उनके हैबिट के बेसिस पे क्लासीफाई करा बच्चा। तो जो एनिमल क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दी थी उसको बाद में आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया गया और बोला गया ये आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है। एरिस्टोटल के इस क्लासिफिकेशन को बहुत सारे साइंटिस्ट ने सपोर्ट भी किया था। थियोफरास्टस, जॉन रे, पिली, दे ऑल सपोर्टेड दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद नेचुरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन आया, विच टेल अस वो क्या कर रहा था। नेचुरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल को इंटरनली देख रहा था, क्या इनके बॉडी में ऑर्गन्स है, इनके बॉडी में टिश्यूज़ है, सेल्स हैं, ये किस सेल से बने हुए हैं, क्रोमोसोम्स कैसा है। तो ये अब जो नेचुरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन आया ये हमारे इंटरनल अपीयरेंस के बेसिस पे था बेटा। फिर धीरे धीरे एनिमल्स को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से क्लासीफाई करने के बाद दोबारा से एनिमल क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बेसिस पे भी एनिमल को क्लासीफाई किया गया। तो बेटा इवोल्यूशन के बेसिस पे जो साइंटिस्ट ने एनिमल को क्लासीफाई किया उसे बोला जाता है डॉब्जीकाई एंड अलोंग विद दैट मेयर। और स्टूडेंट्स लास्ट क्लासिफिकेशन हमने कार्ल वूस ने भी हमें जो है एनिमल क्लासिफिकेशन दी है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री ऑफ अ एनिमल classification. Now students we are going to talk about कि what is the benefit of classifying animals। हम इतना टाइम देके अपना एनिमल्स को क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा हम देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन बेटा you can write down so many points about benefit। अगर हम लोग सबसे पहली बात करें तो इसने एनिमल की स्टडी को क्या कर दिया, इजी कर दिया। स्टडी ऑफ एनिमल बिकेम कन्वीनियंट और इट बिकेम इजी। तो व्हाट वी कैन राइट डाउन, स्टडी ऑफ एनिमल बिकेम कन्वीनियंट। स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकेम कन्वीनियंट। एनिमल्स का स्टडी क्या हो गया बेटा, कन्वीनियंट हो गया, हमारे लिए इजी हो गया। अब बेटा जब आपने एनिमल्स को क्लासीफाई कर लिया तो एनिमल के क्लासिफिकेशन की वजह से हमारे लिए इवोल्यूशन को समझना भी इजी हो गया।
हम इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, हम कहाँ से इवॉल्व होके आए हैं, ये हम अपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पे भी ये हमारे लिए क्या रहा, हेल्पफुल रहा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन became easier, हमारे लिए वो थोड़ा क्या हो गया, easy हो गया। So we are going to write down study of animal classification became easier. Now student moving ahead, अगर हम लोग बात करें तो हम जब एनिमल्स को क्लासीफाई कर लेते हैं तो वी आर एबल टू ऑब्टेन अ रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड आवरसेल्फ। तो हमें जो है वो इजी हो गया टू अंडरस्टैंड कि हमारे बीच में और एनिमल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो वी कैन राइट डाउन, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो वी विल राइट डाउन, हेल्प टू अंडरस्टैंड, हेल्प टू अंडरस्टैंड relationship between animals and living organism। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप समझना क्या हो गया बेटा, इजी हो गया। स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसके बाद बात करें तो हमारे लिए एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना विथ ग्रेट एक्यूरेसी जो है वो पॉसिबल हो गया। इट बिकेम ईजियर टू क्लासीफाई एनिमल, इट बिकेम ईजियर टू आइडेंटिफाई एनिमल्स, एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए क्या हो गया बेटा, इजी हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा है, हमने सबसे पहले रिवाइज किया है बाय फ्लो चार्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। फिर हमने देखा है व्हाट इज द नीड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। आगे जाके हम अपने लेक्चर्स में कुछ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और फिर हम पूरे एनिमल क्लासिफिकेशन, ये सारी तो हिस्ट्री थी ना बेटा, तो अब क्या होगा, हिस्ट्री के बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होके कुछ बेटर मेथड्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन आए। तो वो एनिमल क्लासिफिकेशन के मेथड कौन से थे वो हम आगे जाके अपने लेक्चर्स में देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर्स।